A moving story from the courts in Delhi today, as a survivor of an acid attack petitioned the Supreme Court along with the parents of a young woman who had died after succumbing to injuries from her acid attack, demanding stronger laws. The court was scathing. It's given the government 1 week to get its act together. Here's the story of Lakshmi and her brave fight. It's a small moment of victory for Lakshmi, who is fighting a legal battle to get the government to take the issue of acid attack crimes seriously. Something the government is clearly not doing, says the Supreme Court. Responding to Lakshmi's 2006 PIL asking for greater control on acid availability and compensation for victims, the court slammed the centre and state government for not responding earlier. It has now given the centre 1 week in which to issue guidelines to restrict the sale of acid. At the moment, as this clip shows you, anyone of any age can buy pure, undiluted acid for as little as 20 rupees. Acid attack survivors and activists say this easy availability makes the crime easy to execute. In India, that political will and support for acid attack victims is completely missing. There is no comprehensive database on acid attack crimes despite its high incidence. Just last month, just 23, Preeti Rathi died of her acid burn wounds. Her family still trying to grasp the tragedy. When Sonali Mukherjee, a bright, attractive NCC cadet from Jharkhand, was attacked by acid, she lost her eyesight. What followed was so traumatic, she wanted the courts to allow her to die. अगर कुछ नहीं कर सकते तो आखिर हमें अपनी इच्छा से मरने की इजाजत दे दो आखिर इस मनुष्य के लिए. Lakshmi's own story reflects the extent of trauma, but her legal fight has become a source of inspiration. She was just 14 when her brother's friend Naeem Khan, along with his friend, threw acid on her as she refused to marry him. Both of them are in jail. Lakshmi says her story is like hundreds of others who are desperately in need of support, and says it brings her some solace that the court at least intervened. कोई साथ नहीं था और जॉब की बात रही, जॉब भी छूट गई थी मेरी. फिर उसके बाद किसी ने मुझे पूछा नहीं. For the last 7 years, this issue has been pending here in the Supreme Court. The centre as well as the state governments have been dithering to come out with a scheme to control the sale of acid. Now, the top court has given a week's time to centre to act, or else the court will pass orders on the 16th of this month to control the sale of acid at the retail level. With Radhika Bodia, this is Arunachalam Vaidyanathan for NDTV. So a young woman has to go to the court to get the centre to respond. It is actually heartbreaking but also extraordinary to hear some of these accounts. On the buck stops here tonight, we're now going to be talking to somebody who's undergone 25 surgeries since acid was flung at her face. All of these women are extraordinary in the courage that they're showing to battle what happened to them and change their life forever. Archana Kumari is joining us now. Archana, जब से हम मिले हैं और हम पहले भी मिले हुए हैं, यस मैम, आपकी कितनी सर्जरीज हो गई है? 25 सर्जरीज? जी मैम, मेरी 25 सर्जरियां हो चुकी हैं अभी तक, और एक अभी 27 डेट को ही हुई है मेरी आइस की सर्जरी चेन्नई में. अभी मैं आज ही चेन्नई से वापस लौटी हूँ सुबह में. अच्छा, आपके साथ क्या हुआ, जरा हमारे दर्शकों को बताइए. टेल आवर व्यूअर्स कि आपका एक स्टॉकर था, एक आदमी आपको स्टॉक करता था, आपने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया और उन्होंने आपके मुंह पे एसिड. हाँ, 4 साल के बाद मेरे को उसने बदतमीजी जो की थी सन 2004 में की थी, और उसके बाद 4 साल के बाद एसिड मेरे ऊपर डाल दिया 2008 में. और कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, बस मतलब ऐसे बोलता था कि तुम मुझे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगा, तुम्हारे भैया को मार दूंगा. अलग अलग तरह से वो मेरे को धमकियां देता था. तो मैंने मतलब मैं उससे जब नहीं डरी, मैंने कहा तुम्हें जो करना है आप कर लीजिए. मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई फैमिली सपोर्ट उसको नहीं था. वो अपनी बहन के यहाँ पे रहता था जी. तो और बहुत शराबी टाइप का लड़का था, बिगाड़ा टाइप का एकदम से. तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, इतनी हिम्मत है उसके अंदर. तो एक पल में आपकी जिंदगी बदल गई? जी मैम, और मैं मतलब अपनी बुआ जी के यहाँ से आई थी, 3 महीने से मैं अपनी बुआ जी के यहाँ पे थी. और जैसे ही मैं गाँव में आई, मुझे 2 दिन ही हुआ था, तीसरे दिन मेरे ही घर पे आके उस लड़के ने मेरे ऊपर एसिड डाल दिया. अच्छा, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, you know, because your life changed forever.
pictures from before this attack happened. So let's Yes, bring ma'am. up those pictures, and we can see those pictures on the screen. This is Archana before the acid attack happened and completely disfigured your face. अब एक तरह से जो जिंदगी बदल जाती है इस disfigurement के बाद, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं उसके बारे में क्या मैं आपको बताऊं, जिस तरह मतलब मेरी लाइफ बदली है आज, जितना मैं महसूस कर रही हूँ बस मैं ही जानती हूँ। मैं मतलब आप मेरा फोटो देख सकते हो, मेरे आपका फोटो शरीर लगा हुआ है पे स्क्रीन पे। एक ऐसा भी निशान नहीं था कि किस तरह एक निशान होता है, और कोई एक पल में आके, और बहुत कम कीमत में मिलने वाला तेजाब जो एक पल में कहीं भी किसी भी आम दुकान पे कोई भी इंसान खरीद सकता है। इसके ऊपर ना कोई कानून है, ना कोई इसके ऊपर रोक है। उसे एक 10 रुपए में कोई भी लाके किसी की पूरी जिंदगी, किसी के माँ बाप की पूरी मेहनत एक ही क्षण में मतलब बर्बाद कर देता है। तो और जिसे हम पूरी लाइफ सहन करते हैं, और आज मैं जो सहन कर रही हूँ बस मुझे जानती हूँ कि मतलब मुझे कितना दर्द है, मानो जैसे कि आसमान बिल्कुल जमीन पे आ गया हो, इस तरह मैं फील करती हूँ। पुरानी तस्वीरें आप अपनी देखती होंगे तो मैं पुरानी तस्वीर नहीं उतना देखती हूँ, और बहुत ज्यादा दुख मन नहीं होता है। बनता देखने का ना। मन भी नहीं होता है, और मतलब एक उम्मीद थी कुछ दिन तक तो कि शायद मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन आज मेरे को इतना दुख हो रहा है। मैं चेन्नई गई थी बहुत बड़ी उम्मीद से कि मेरी आंख ठीक हो जाएगी, और आपकी आंख पे सीधा आंख में एसिड फेंका हाँ, था? ओपन ओपन आप खोलना चाहे तो बता हाँ, मेरी ये आईज अब बिल्कुल आज रेड है, और बहुत ही ज्यादा मतलब ये जल गई है, और मेरा एक साइड पूरा ईयर भी नहीं है, और पूरे हेयर भी नहीं थे इधर, पूरा नेक काफी मतलब बैक भी पीछे बर्न है। तो इतना मतलब जो मैं सहन कर रही हूँ, मेरी मम्मी मेरे साथ गई थी, हम चेन्नई में, आज हमें 23 दिन हो गए थे, और बहुत उम्मीद लेके मैं गई थी कि मेरी आंख ठीक हो जाएगी। तो आप अपनी आई की रिकंस्ट्रक्शन एक तरह से जी कोशिश करते, तो डॉक्टर्स ने क्या बोला? तो उन्होंने वहां पे एक ऑपरेशन किया भी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ उतना। उन्होंने बोला कि अब आप नेक्स्ट मंथ आना। अब जो आलोक सर हैं, तो उन्होंने मतलब मेरे लिए हेल्प करी है, एक प्रज्ञा दीदी हैं, उन्होंने हेल्प करी है, पैसा इकट्ठा करके मेरा ये मुझे चेन्नई भेजा था उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी मेरा अभी ठीक नहीं हुआ है। तो मैं एकदम निराश ही हो गई हूँ कि पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। मेरे पापा मेरी मम्मी मतलब बहुत ज़्यादा निराश है इस टाइम। मम्मी भी बहुत बीमार रहती हैं, और पापा को मेंटली अटैक हुआ है, और एक छोटा भाई है, तो वही मतलब हमारे घर का सब कुछ अरेंज करता है। तो हम इतनी उम्मीद के साथ जी रहे थे, चाहे मेरे माँ बाप गरीब थे या कैसे भी थे, वो हमारा पेट पाल रहे थे। लेकिन अब आके ऐसी जिंदगी हो गई है, वो ना खुद जी पा रहे हैं, ना हमें अपना दर्द बता पा रहे हैं, और ना मैं उनको अपना दर्द बोल पाती हूँ। तो एक कोई भी इंसान किसी लड़की की पूरी मेहनत, उसके माँ बाप की एक पल में ऐसे कैसे बर्बाद कर सकता है? मुझे मतलब बहुत दुख होता है। मेरे साथ हुआ है, बहुत लड़की हैं जिनके साथ ये सब हुआ है, और सभी लड़की के फेस पे मतलब है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि सरकार को 1 हफ्ते में कुछ करना पड़ेगा, और जिस तरह से आपने कहा कि 10 रुपए में एसेट मिल जाता है, इस तरह की जो इजी सेल है वो रोकनी पड़ेगी, तो कुछ उम्मीद आपको मिली? अब तो मेरे को लगना चाहिए कि अब तो इस पे कम से कम कुछ होना चाहिए, इस पे रोक तो लगनी चाहिए। अगर मानो वो हेल्प अगर हमें देना चाहते हैं या हमारी मदद करना चाहते हैं, अगर अपनी बेटी मान के वो हमें देखे अपनी बेटी के नजरिए से, तो शायद वो उनको वो पल याद आएंगे कि हमने अपनी बेटी को किस तरह पाला है, उसे हमने किस तरह बड़े किया है। तो शायद वो सोचे कि हम इनके लिए कुछ करें। मानो किसी की लड़की की जिंदगी बेकार करना एक बहुत बड़ी बात होती है। माँ बाप के लिए जो ये एक पीड़ा इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे माँ बाप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि पैसे की भी तकलीफ होती है, पैसे की बहुत और आप ज्यादा कंप्यूटर तकलीफ होती स्टडीज है। भी साथ में करने की कोशिश कर रही हैं? यस मैम। क्या कंप्यूटर्स में क्या कोर्स कर रही हैं? अभी तो मैंने बेसिक ही सीखा है, ज़्यादा नहीं सीखा है, और 2 महीने का कोर्स मैंने किया था बीपीओ का। और अभी मैं एसिड अटैक के ऊपर काम करने का सोच रही थी कि शायद मैं पढ़ाई कर लूँ आगे और कुछ कर पाऊँ, पर लेकिन मेरा ही खुद ट्रीटमेंट इतना है कि मैं अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही हूँ अभी मैं। आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि अब तो जिंदगी बदल गई आपकी, और बहुत गुस्सा भी आता होगा, और आप जैसे है आज निराश है कि सर्जरी सक्सेसफुल नहीं रही, तो क्या अब जिंदगी बेहतर
क्या मिल सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर या फिर मेडिकल सपोर्ट के तौर पर, जिससे कुछ आपके लिए इम्प्रूवमेंट हो आपकी जिंदगी में? बस मैं यही कहूंगी कि एक तो लड़कियों के लिए, सभी लड़कियों के लिए सरकारी नौकरी होनी चाहिए जी। और उनके जो गुनहगार हैं उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि जिस तरह हम एक एक पल अपना गिन गिन के और हर टाइम एक दर्द के महसूस में हम काटते हैं, उसी उसको वो भी काटे। उसे कभी मतलब हम खुशी में भी खुश नहीं रह पाते हैं, उसको भी ये फील होना चाहिए कि मैंने कोई क्राइम किया है, और कभी उसको पेरेंट्स से नहीं मिलने दिया जाए। और मैं फांसी की सजा नहीं मांगूंगी, उसको एक ऐसे अंधकार जीवन दिया जाए कि उसे पूरी लाइफ टाइम हमारी जैसी लाइफ उसे गुजारनी पड़े। और लड़कियों का पूरा फुल ट्रीटमेंट सरकार को उठाना चाहिए और उनको तुरंत सहायता देनी चाहिए। अगर लड़की बार बार जाती है किसी भी सरकार के पास, किसी नेता के पास जाती है और कोई लड़की जाने के लायक नहीं होती है और कोई लड़की नहीं भी जा पाती है, तो क्या उस लड़की का दर्द नहीं होता है? उस लड़की को भी तो दर्द होता है। मानो हम आज यहाँ तक हैं, बहुत सी लड़कियां यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, तो उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं, उनके दर्द को हम कैसे दूर कर सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो इस तरह का हादसा और उसके बाद जिंदगी में भी ना सपोर्ट मिले तो एक तरह से जो दर्द है वो डबल हो जाता है। हम आपको जितनी हम लोग अपनी तरफ से मदद कर पाए वो करेंगे। अर्चना कुमारी, थैंक यू सो मच। योर स्टोरी इज अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ व्हाट thousands of women like you undergo every day.